جی اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ کو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. جی شامت قریشی صاحب پلیز. جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے اور یہ ایوان بھی پوری طرح باخبر ہے کہ 7 جون صبح انٹوریو کینیڈا میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 5 افراد ایک پاکستانی کینیڈین فیملی کے متاثر ہوئے. میری گزارش ہوگی ذرا خاموشی. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. 5 پاکستانی کینیڈین نیشنلز اس میں متاثر ہوئے. 4 شہید ہو گئے اور ایک بچہ جس کی عمر 9 سال ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور ہسپتال میں داخل ہے. جناب والا، یہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہے اور ایک بہت دردناک واقعہ ہے. میری آج صبح جو ہمارے کونسل جنرل ہیں ٹورانٹو میں، ان سے بات ہوئی، ہائی کمشنر سے رابطہ ہوا اور میں نے کچھ تفصیلات حاصل کی ہیں. یقین جانیے جب میں تفصیلات میں جاتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے اور آنکھ نم ہوتی ہے. میں تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، اس لیے کیونکہ آٹوپسی رپورٹ ابھی آنی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آٹوپسی رپورٹ سے پہلے کوئی ایسی بات کر دی جائے جو کہ اس کیس کو متاثر کرے. جناب والا، میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں، ہاؤس کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبک اٹیکس یہ ایک ٹرینڈ ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں. دے آر آن دا رائز ان دا ویسٹرن ورلڈ اور اس کا ذکر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بارہا کر چکے ہیں اور پچھلے 2 سال سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اس طرف مبذول کروا رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے، یہ انڈیویجول ایکٹس نہیں ہیں. اگر آپ اس کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سرپھرا تھا، کوئی انڈیویجول ایکٹ تھا، ہوگا، لیکن اگر ہم اس کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو یہ بڑھتا ہوا ایک ٹرینڈ ہے جو تشویشناک ہے. اگر آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں جو مسجد پہ حملہ ہوا اور جو شہادتیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہاں کی وزیر اعظم نے اور وہاں کی سوسائٹی نے جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھا اور جس طرح اس سہنے کو انہوں نے جس درد مندی سے اس چیلنج سے نبرد آزما ہوئے، وہ ایک بڑا ایک حوصلہ افزا بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ٹرینڈ ہمیں ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں جناب اسپیکر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں نہتے لوگوں کو چھریوں سے حملے ہوئے ہیں، نائفنگ، سٹیبنگ ہوئی ہے. کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیدرلینڈز میں آپ نے کیریکیچرز کا ایشو دیکھا اور اس ایشو نے پوری امہ کے جذبات کو جس طرح مجروح کیا وہ بھی اس ایوان کے علم میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں فرانس میں جو ہوا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس ٹریجک ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ اس سے معاشرے تقسیم ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے. جناب اسپیکر، اس وقت آپ کو زیادہ علم ہوگا، کم از کم 65 ملین مسلمان ایسے ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں. اگر کینیڈا کو لے لیں تو کم از کم ان کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ
अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन मुसलमान हैं जो कनाडा में मुकीम हैं। अमेरिका को ले लें तो perhaps number might touch 6 million or over 6 million। अब मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो हालात बिगड़ सकते हैं, माशरा तकसीम हो सकता है, हेट स्पीच, इंसाइटमेंट और उससे नुक्स अमन भी पैदा हो सकता है, जज्बात उभरते हैं और ट्रेजेडीज जो हैं वो जन्म लेती हैं। इसी चीज़ को सामने रखते हुए, इन इंसिडेंट्स को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि हमें इस्लाम जो हमारी उम्मा है उसे यकजा करना चाहिए और इस पर हमें एक लाअमल मुरतब करना चाहिए। अकेला पाकिस्तान आवाज़ उठाता है तो वो इतनी मौसर नहीं होगी, अगर हम सब मिल के आवाज़ उठाते हैं तो वो मौसर होगी। जनाबे वाला, उनके अहकामात पर मैंने नियामी में जो OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास था, वहाँ मैं पाकिस्तान की तरफ से एक करारदाद लेके गया और मैंने उस करारदाद में ये गुजारिश की कि यकज़बा होके पूरी उम्मा को इस मसले को टेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बाइत्तफ़ाक़ राय उस करारदाद को न सिर्फ मंजूर किया बल्कि अपने PRs को जो न्यूयॉर्क में तैनात हैं उन्हें हिदायत दी कि वो इस मैटर को टेकअप करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस पर एक कंसेंसस जो है उसको बिल्ड करें। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब इस पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने इस ट्रैजिक इंसिडेंट पर अपना ट्वीट भी किया है। जनाबे वाला, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये मसला बहुत ही दर्दनाक है। इस वाक़े में जो अलग सुबह 7 जून को हुआ, मेरी इत्तलात के मुताबिक वाक़या जब इंसिडेंट होता है और फैमिली को इत्तला की जाती है, इसमें 12 घंटों का वक्फा है और इन 12 घंटों में यकीनन वहाँ की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और वो अपनी उन्होंने मौके भी पहुँचे और अपनी इंक्वायरी भी कर रहे होंगे। लेकिन मेरी जो बात हुई अपने काउंसिल जनरल से, तो वो पहले थे शख्स जो फैमिली से जिन्होंने राब्ता किया और उनकी जो है रूहदाद सुनी। इसमें मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि 4 शहादतें हो चुकी हैं। सलमान अफजल साहब, उनकी वालिदा, उनकी अहलिया, उनकी बेटी तो अल्लाह को प्यारे हो गए और 9 साला बच्चा जो है वो कशमकश में मुब्तला है। मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ ये एक हेट क्राइम है और उस पर कोई शक नहीं कि 4 काउंट्स ऑफ मर्डर उस पर लग गए हैं, लेकिन हम रूल आउट नहीं कर सकते और कैनेडियन पुलिस ने भी कहा है कि वो अभी रूल आउट नहीं कर रही कि इस पे टेररिज्म का जो शुबा है उसको भी अभी वो रूल आउट नहीं कर रहे। दे आर वेटिंग फॉर द ऑटोप्सी रिपोर्ट। जनाबे वाला, वो जो फैमिली थी वो एक प्रोफेशनल फैमिली थी और जो फैमिली के सरबराह थे वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थे। 10 साल से वहाँ मुकीम थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अमन आमा से रह रहे थे, कोई बिगाड़ नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी को ना तकलीफ़ पहुँचा रहे थे। उनके साथ ये जो वाक़या रूनुमा होता है, सिवाय इसके कि नफ़रत इसमें जो है दिखाई देती है और नफ़रत किस पे? फेथ रिलेटेड। उनका गुनाह कसूर क्या था कि वो एक माशरे से और एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करते थे। ये उनका गुनाह था। जनाबे वाला, मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब फैमिली से राब्ता हुआ तो सूरत हाल ये है
कि वो इस वक्त शॉक में हैं और होंगे और ग्रीफ में हैं और सहमे हुए हैं। वो अभी मीडिया से भी बात करने से कतरा रहे हैं, नेचुरली कतरा रहे हैं, और ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि जब तक पूरे हकायक उनके सामने ना आ जाएं, पूरी ऑटोप्सी की रिपोर्ट उनके सामने ना आ जाए, वो इस पर बात कोई ख़ास इस पर मुनासिब नहीं समझते। उनके भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनसे राब्ता हो गया, एंड ही इज़ फ्लाइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू रीच कैनेडा। और ये फैमिली जो है बुनियादी तौर पर लाहौर की फैमिली है, गुलबर्ग में ये रिहाइश पजीर थे और वहाँ वो शिफ्ट उन्होंने किया था 10 साल पहले। जनाब वाला, आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में वाज़े एक मौक़िफ़ लिया है जो हौसला अफ़ज़ा है, और वो ट्वीट ये है कि हम इस्लामोफोबिया को एलिमिनेट करने के लिए आपके साथ हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए जो कि इस राइजिंग ट्रेंड को अरेस्ट कर सके, उसका तदारक हो सके, उसके सामने बंद बांधा जा सके। ये वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान ने लिया है, ये वही मौक़िफ़ है जो OIC ले रही है, और ये हौसला अफ़ज़ा बात है। जनाब वाला, जो प्रीमियर हैं ओंटारियो के, उन्होंने भी अपना कहा है कि हमारे सूबे में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, और वो कहते हैं कि हमारे दिल टूटे हुए हैं, हमारे दिल टूटे हुए हैं क्योंकि 3 नस्लें, एक ख़ानदान की 3 नस्लें जो हैं वो इस ट्रेजिक इंसिडेंट से मुतासर हुई हैं। मेरी अभी जनाब स्पीकर यहाँ आने से पहले जो यहाँ कैनेडियन हाई कमिश्नर हैं वेंडी गिल्मो, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, और मैंने पाकिस्तानी कौम के जज्बात और हमारी जो तशवीश है मैंने उनसे शेयर की है, और उनसे भी मैंने मालूमात हासिल की हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैंने सुबह भी किया है अपने मीडिया इंटरेक्शन में, और मैंने हाई कमिश्नर से भी किया है कि जिस तरह न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने उस साहने को सामने रखते हुए जो किरदार अदा किया, जो फ़हम फरासत का मुजाहरा किया और ज़ख्मों पे मरहम रखी, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो बड़े इनलाइटेंड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, पसंद किए जाते हैं, उन्हें भी he should step up and rise to the occasion और उस फैमिली के पास जाएं। उससे क्या होगा? उससे जो इस वक्त जो सहमे हुए लोग हैं वहाँ, और बहुत बड़ी तादाद में हैं टोरंटो में और गिरदोनवा, वो उनका एतमाद बहाल होगा, उनके निज़ाम पर, उनकी पॉलिसीज़ पर उनका जो एतमाद है वो बहाल होगा। मैंने दरख्वास्त की है कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर से, और उन्होंने उनकी मसरूफियात को देखते हुए कल शाम 6 बजे टेलीफोन पे उनसे कॉल भी तय हो चुकी है। मैं यकीनन इस ऐवान के जज्बात भी, पाकिस्तानी कौम के जज्बात की उनकी खिदमत में पेश करूँगा। हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो भी उनके साथ राब्ते में हैं। जो मुस्लिम कम्यूनिटी है वहाँ उस शहर की, उन्होंने भी अपने मेयर से राब्ता किया है, अपने जज्बात, अपने तासुरात, अपने एहसासात और अपनी तशवीश का उन्होंने ज़िक्र किया है। और मैं समझता हूँ कि मेरी दरख्वास्त है, मैंने काउंसिल जनरल साहब से भी ये कहा है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी बहुत बड़ी तादाद में टोरंटो में हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी वहाँ कैनेडियन बसते हैं, मैं समझता हूँ कि आज इस आजमाइश में उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और उन्हें उस फैमिली के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए, और उन्हें कंसोल करना चाहिए, और उनके गम में शरीक होना चाहिए। अगर वो जनाजा करते हैं, और यकीनन होगा क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसला किया है जनाब स्पीकर कि वो डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान नहीं लाना चाहते। हमने ऑफ़र की थी कि हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, कफन दफन के इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, उनकी बॉडीज़ को पाकिस्तान लाने के लिए मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम उनको यहीं दफन करना चाहते हैं, और हमें कोई मदद भी दरकार नहीं है।
اللہ کا کرم ہے ان پر, ہمیں وہ مدد ہم سے نہیں مانگ رہے, لیکن جو ہماری ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایسی ٹریجڈی میں, وہ ہمیں آفر کرنی چاہیے. میں درخواست کروں گا کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں کینیڈا میں, پاکستانی ہیں, انہیں نماز جنازہ میں یا غائبانہ نماز جنازہ ہے, جمعہ ہے, جمعے کی تقریبات ہوتی ہیں, دعا ہوتی ہے, اس میں ان کو یاد رکھنا چاہیے. میری یہ چند گزارشات تھیں. ہمارا کینیڈین گورنمنٹ سے رابطہ بھی ہے, اور اسلامو فوبیا پر جو ہماری حکمت عملی ہے اس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اور ہمیں اب جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس باڈیز ہیں جو آئے دن علمبردار ہیں انسانی حقوق کے, یہ ایک انسانی حقوق کا واقعہ ہے, انہیں اس پر بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں پاکستانی میڈیا کا جنہوں نے صبح سے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر وہ اپنے اس سے صرف نظر نہیں ہوگا اور اپنا کردار ادا کرے گا, تاکہ یہ جو رجحان ہے اس رجحان کے تدارک کے لیے ہم مل کر انسانی بنیادوں پر ہم ایک حکمت عملی جو ہے ہولسٹک ویو لیتے ہوئے ہم ایک حکمت عملی وضع کریں. شکریہ.